Okay, students, before starting our lecture, we will have a quick recap of what we have discussed on last lecture, as there was some disturbances in last lecture. Many students has complained that my voice was not clear in yesterday's lecture. So let us start. We have started with the history of formal grammar. So basically, it has started in early 50s. Okay, and it was in Noam Chomsky who has given the first mathematical model for the grammar in 1956. Okay, let me change the color. Okay. And then we have informally discussed how we can design or define a grammar corresponding to a given language. So we have taken example of two sentences, Ram ate quickly and Sam ran. We have seen how we have found the structures associated with these two sentences, and we have made a grammar corresponding to it. So basically, when we make a grammar corresponding to any given language, we have to design a set of productions. Okay, because set of production is the kernel of defining the languages. So set of production is important. Okay, so set of production consists of rules of the form, something on the left hand side, arrow, and then something on the right hand side, and always whatsoever is on the right hand side, that can replace the left hand side if it is available in some working string. So we have seen the concept of working string also. Working string is nothing but whatsoever production we have applied, after application of that particular production, whatsoever string we are getting, that will be called as the working string. Okay, and through the grammar we can do the derivation of our sentences. So in derivation we always start with S and we replace the words using the productions. So S से शुरू करते हैं, कोई रूल अप्लाई करते हैं, फिर हमें एक वर्किंग स्ट्रिंग मिलता है, उस वर्किंग स्ट्रिंग में कुछ वेरिएबल होते हैं, उनमें से किसी वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग फिर प्रोडक्शन सेट से कोई रूल लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस स्टेप until we reach to a string of terminals only. So we'll terminate when a string of terminals is obtained. So when a string of terminals is obtained means our word in the language has been obtained. So in this manner we derive strings in the language. Okay, and there is a concept of terminals and variables. So जिनसे हमारे words बनेंगे वो हमारे terminals, और वेरिएबल्स जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे हमारे प्रोडक्शन रूल्स की, वो हमारे नॉर्मली क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे. देन अगर हमारे किसी वर्किंग स्ट्रिंग में वेरिएबल्स, टर्मिनल्स, ये व्हाट्सएवर में एस से हम जब कुछ भी ड्राइव करना शुरू करते हैं, तो जो भी हम प्रोडक्शन रूल अप्लाई करते हैं उसके बाद जो भी हमें स्ट्रिंग मिलता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सेंटेनियल फॉर्म. इट में कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स बोथ, and ultimately we will reach to a string of terminals only. When we reach to a string of terminals only, this is called the sentence. Okay, so this is a difference between the centennial form and sentence. And then we have gone for formal definition of the grammar. It is basically collection of four things: Vn, sigma, p and s. Okay, Vn is a set of variables, सिग्मा इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स, क्योंकि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स में आती हैं. पी इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. ओके, एंड एस इज ए वेरिएबल विच इज ए स्टार्ट वेरिएबल, जहाँ से हम अपने डेरिवेशंस स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड पी के जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए. विल बी ऑफ द फॉर्म अल्फा टू बीटा, मीन समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड, एंड एरो. सो राइट हैंड साइड पर जो कुछ भी है दैट कैन रिप्लेस द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो इन दिस मैनर वी अप्लाई द प्रोडक्शन रूल्स. Then we have discussed certain basic notations. कहीं भी आपके capital letters आ रहे हैं without mentioning, you assume that those denotes the variables. कहीं भी small letters आ रहे हैं तो small letters towards the starting of the alphabet denotes the terminals, and similarly small letters towards the end of the alphabet denotes the string of terminals. So they denote the strings. Starting वाले terminals को denote करते हैं, last वाले स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स को डिनोट करते हैं. इस तरह से अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के कुछ अगर आपके टर्म्स आते हैं, दे डिनोट्स द स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स. मींस वो स्ट्रिंग्स होंगे बट दोज स्ट्रिंग्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टर्मिनल्स एज वेल एज वेरिएबल्स. ओके, द नेक्स्ट टू द पावर 0 इज एप्सिलॉन फॉर एनी सिंबल x in Vn, Union, sigma.
Then we have gone for 5 definitions related to the derivations and the language defined by the grammar. So definition 1 is defining a single step derivation. So it is a one step derivation, and it is represented by this symbol arrow. So alpha when it is having the left context gamma and delta, right context as delta, so it derives beta. Okay, so it is a single step derivation, and it is possible when alpha to beta is a production layer. Then definition 2 defines the multi-step derivation. This also has a almost same symbol, but the only difference is one asterisk is also there. Okay, so one asterisk is also there. So this is called multi-step derivation. Suppose alpha to beta is not a production layer, but anyhow by using some of the productions in our production set, we start from the alpha and we ultimately reaches to the beta. Okay, and for this we apply multiple productions from our production set. Then it is called multi-step derivation and represented by this symbol जहाँ पे कि हमने star लिखा है. Okay, so these were the concepts, and then definition 3 was corresponding to the language defined by the grammar. Okay, so अगर हमारी grammar G है तो इससे जो लैंग्वेज डिफाइन हो रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, LG से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड LG विल बी व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स W विच आर डेरिवेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल. ग्रामर में हम किसी भी वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, S से शुरू करते हैं. तो S से हम जब शुरू करते हैं एंड अल्टीमेटली वी रीच टू ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली. सो ऑल सच स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स विच आर डेरिवेबल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल S will form the language of that particular grammar, that is the LG. So this is a simple concept of the language generated by a particular grammar. Okay, and now definition 4 gives us the definition for the centennial form. Okay, so whatsoever is derivable from the start symbol S is called centennial form. Okay, so अगर हम S से start करें और कुछ भी अप्लाई करके कोई भी स्ट्रिंग हमारा जनरेट होता है, it may be a string of terminals only, it may be a string of variables only, it may be a string of both variables and terminals. Okay, so whatsoever we can derive from S is called a centennial form. अब इस centennial form में से ही कुछ हमारे sentences होंगे. यानी कि अगर ये अल्फा जो है हमारा, it does not contain any variable, it contains only the terminals, then S is deriving some set of टर्मिनल, some set of strings of terminals. Okay, so जो हमारे string of terminals है वो क्या कहलाएंगे, sentences कहलाएंगे. So that's why we claim that all the elements of LG means the sentences in LG are also the centennial forms, but not a vice versa. इनके जितने भी हमारे sentences हैं वो सारे के सारे centennial form हैं, but सारे के सारे centennial form sentences होंगे ये जरूरी नहीं है. इज इट, क्योंकि सेंटेंस हम उन्हीं को कहेंगे जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, जबकि सेंटेनियल फॉर्म में कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं. सो इफ वी आर डराइविंग ए स्ट्रिंग व्हिच कंटेन्स वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड ए सेंटेनियल फॉर्म. इवन इफ इट डज नॉट कंटेन ए वेरिएबल, देन आल्सो इट इज सेंटेनियल फॉर्म. बट इन दैट केस व्हेन इट डज नॉट कंटेन एनी टर्मिनल, देन इट इज basically called sentence. Okay, now this definition 5 is for the equivalence of the grammars. So L of G1 and L of G2 अगर सेम है, दोनों ग्रामर G1 और G2 वो क्या है, आपस में इक्वलेंट है. इसी से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि corresponding to a given language there are possibility of multiple different grammars. अगर दो ग्रामर सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती हैं तो ग्रामर क्या है, इक्वलेंट है, एंड इट इज इन लाइन विद द FAs. जैसे FA में हमारा होता था कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन डिजाइन मल्टीपल डिफरेंट FAs. अगर डिजाइन का कॉन्सेप्ट सही है तो सारे के सारे FA उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी कॉल दैट दोज FAs आर इक्वलेंट. इन दिस सिमिलर मैनर वी कैन शो दैट टू ग्रामर्स आर इक्वलेंट. ओके, सो ग्रामर corresponding to a given language L may not be unique. Then we have reiterated certain previous concepts like single step derivation is represented by this, multi-step derivation is represented by this, and the string generated by the most recent application of some production rule is called the working string. Is it? Then derivation of a string, how do we derive a string? We start derivation from the start symbol S and we keep on applying the rules from the production set. जो भी rules applicable हो लगा सकते हैं हम, उन rules को हम apply करते हैं.
हमारा डेरिवेशन कब कंप्लीट होगा? जब हम अपने वर्किंग स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते. वर्किंग स्ट्रिंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड. अब जब वर्किंग स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं होगा तो देयर विल बी टू कंडीशंस. पहला तो इसलिए मॉडिफाई नहीं हो रहा कि उसमें कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है, इज इट? सो अगर फाइनल स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट है एंड इट इज ए सक्सेसफुल डेरिवेशन. अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल है, इसके बाद भी आप उसे मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, यानी कि वेरिएबल तो है मगर उसमें आप कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, आपके प्रोडक्शन रूल्स जितने भी हैं उनमें से कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आप, देन इट इज ए सेंटेनियल फॉर्म. तो सेंटेंस नहीं होगा, इट विल बी ए सेंटेनियल फॉर्म. अगर हमें सेंटेनियल फॉर्म मिलती है अल्टीमेटली, सो इट इज एन अनसक्सेसफुल डेरिवेशन. अगर हमें लास्ट में सेंटेनियल फॉर्म नहीं सेंटेंस मिलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल डेरिवेशन. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल derivation. Okay, then we have seen that this grammar G in our operations we will mention only when it is necessary. If we are working with multiple grammars and we have to make an identification on which grammar we are performing the operation, so the name of the grammar will be written here. If we are working only with a single grammar, so there is no other grammar, so it is not necessary to write the name of the grammar. Simply we can use the symbol without mentioning the grammar G. And then suppose on the left hand side, if there is only a single variable, so we can name the productions with the name of that variable. So अगर A variable के productions हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? A productions कह सकते हैं. अगर B variable के productions सपोज B टू अल्फा फॉर्म के हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? B productions कह सकते हैं. तो हम productions को उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके नाम से मेंशन कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और नहीं है, केवल एक वेरिएबल, इज इट? एंड इसी तरह से अगर किसी वेरिएबल के मल्टीपल प्रोडक्शंस हैं, जैसे A टू अल्फा 1, A टू अल्फा 2 एंड सो ऑन, सो हम इनको अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सेपरेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन. सो इन दिस केस इट विल नॉट बी ए सिंगल प्रोडक्शन, इट विल बी ए सेट ऑफ प्रोडक्शंस. So alpha 1 से alpha n तक n productions हैं. So A2 alpha 1 is a single one production, A2 alpha 2 is second production, A2 alpha 3 is third production, and so on. So this was all we have discussed up till the last lecture. If you still have any doubt up till now, you can ask. Otherwise, we will start with today's agenda and we will start analyzing the grammars. Analyzing grammar. Analyzing grammar means we will analyze the grammar to find the language defined by this particular grammar. So if you have any doubt, you can ask. If you do not have any doubt, then we will move forward. Class, is there any doubt? Class, is there any doubt? Is there somebody in the class who is listening my voice? No sir, no doubt. No doubt. Okay. Respond कर दिया करिए जब मैं पूछता हूँ तो quickly somebody unmute your mic and respond. लैग करके आ रही है सर. क्या चीज? वॉइस आपकी नहीं, आवाज लैग करके वॉइस नहीं आ रही है सर. थोड़ा रुक आ रही है. ओके ओके ओके. सभी को ऐसे ही रुक करके आ रही है आवाज या केवल एक दो के साथ प्रॉब्लम है? अदर पर्सन्स ऑल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड. Are you getting the voice? Yes sir, now it's clear. Okay. चलिए, तो let us start. So this is the grammar. So grammar जैसे हमने कहा था कि it is a collection of 4 things. So VN. So let us see. Suppose this is VN. So this is a set of variables. So in this set there is only a single variable, that is the S. That is the start symbol. Okay. So in this particular this grammar there is only one variable. There may be the grammars जहाँ पे आपके 1 से ज़्यादा variables भी होंगे. Okay. Then this is the sigma, VN sigma. Sigma, it is the set of terminal जिनसे हमारे words बनेंगे, जिससे हमारे sentences बनेंगे. Is it? And then this is the set of productions.
सो इसमें सेट ऑफ प्रोडक्शन है, इस सेट ऑफ प्रोडक्शन में आपके दो प्रोडक्शन रूल्स हैं, S2 0 S1 एंड दूसरा प्रोडक्शन रूल क्या है, S2 एप्सिलॉन, इज इट। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे वन वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है। सो एरो जहां भी आ रहे हैं वो आपके क्या है, प्रोडक्शंस हैं। सो जितने भी प्रोडक्शंस हैं उन सबको मिला के क्या बना आपका, सेट ऑफ प्रोडक्शन P, and then this is your S, which is the start symbol. So certainly it will be present in the Vn as well. So Vn, sigma, P and S. So this is the grammar. So grammar is being defined in this manner. Now we have to find the language defined by this particular grammar. So अगर हमें grammar की लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है, सो इसकी हमने अभी डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन नंबर 3 में। उसमें क्या था कि जितने भी वर्ड एस से ड्राइव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उस ग्रामर से डिफाइन होने वाली लैंग्वेज का पार्ट होंगे। मींस अगर एस से ड्राइव करना शुरू करूं मैं, तो जो भी वर्ड्स मेरे ड्राइव होते हैं उन सबको मैं एक तरफ इकट्ठा करता जाता हूं, तो वो सेट क्या कहलाएगा, दैट सेट विल बी कॉल्ड एज LG, इज इट। सो मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने एस से शुरू किया। देखिए मैं इसके नीचे जी नहीं लिख रहा हूँ, केवल ये जो है यही सिंबल बना रहा हूँ क्योंकि मैं सिंगल स्टेप डेरिवेशन कर रहा हूँ, इज इट। अब चूंकि मेरे पास एक ही ग्रामर जी है तो इसलिए मैं इसके नीचे जी नहीं लिख रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 या 3 ग्रामर होती तो किस ग्रामर पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, देन आई हैव टू मेंशन दैट ग्रामर हियर, इज इट। सो एस ड्राइव्स। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एस है मेरे पास, एस से शुरू करना है, या तो मैं पहला वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ या दूसरा वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ। दोनों रूल एप्लीकेबल है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। सपोज मैं इस सेकंड रूल को अप्लाई करता हूँ, S2 एप्सिलॉन, सो इट विल ड्राइव एप्सिलॉन। इसके बाद क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसके बाद क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना, इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों, क्योंकि अब ये मेरा जो वर्किंग स्ट्रिंग है, पहले देखिए मेरा वर्किंग स्ट्रिंग S था, यहाँ एक वेरिएबल था, तो इसीलिए मैं रूल अप्लाई कर पाया। अब मेरे पास यहाँ जो वर्किंग स्ट्रिंग है, इट इज एप्सिलॉन, इट इज नल स्ट्रिंग, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, इज इट। सो आई हैव रीच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली और ए नल स्ट्रिंग, ओके। सो यानी कि इसके आगे मेरा वर्किंग स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो अब ये मेरा सक्सेसफुल जो है डेरिवेशन है, क्योंकि मेरे पास कोई भी इसके अंदर वेरिएबल नहीं है वर्किंग स्ट्रिंग में और मैं इसको आगे मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, ओके। सो LG कंसिस्ट ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज नंबर 1। अब एप्सिलॉन के अलावा भी कुछ स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो दो पॉसिबिलिटीज थी उन दो पॉसिबिलिटीज में मैंने केवल एक पॉसिबिलिटी ट्राई की है, दैट इज S2 एप्सिलॉन, ओके। अब की बार हम वापस स्टार्ट करते हैं S से और कुछ ड्राइव करते हैं। पिछली बार हमने S2 एप्सिलॉन किया था तो देखिए यहीं पे स्टॉप हो गया था, इसके आगे हम नहीं बढ़ पाए थे। तो अब की बार हम दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं कि S2 0 S1 अप्लाई करते हैं, 0 S1, दिस आई हैव अप्लाइड। अब जब मैंने ये अप्लाई किया तो मेरे पास अब वर्किंग स्ट्रिंग क्या हो गया, पहले S था, अब क्या हो गया 0 S1, इट स्टिल कंटेन्स ए वेरिएबल। सो आई हैव नॉट रीच टू ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली एंड S वेरिएबल है, ये अभी मॉडिफाई हो सकता है। कैसे मॉडिफाई हो सकता है, इस S के प्रोडक्शंस को मैं यूज कर सकता हूँ। अब S के वापस मेरे पास क्या प्रोडक्शन है, दो प्रोडक्शन है, या तो 0 S1 या S2 एप्सिलॉन। सपोज मैं S2 एप्सिलॉन इस वाले प्रोडक्शन को अप्लाई करता हूँ, सो मैंने S2 एप्सिलॉन इस वाले प्रोडक्शन को अप्लाई किया, तो S की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। सो मेरा स्ट्रिंग क्या बनेगा, 0 1। सो आई हैव रीच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली, आई हैव रीच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली। अब इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता और इसमें क्या है, कोई भी वेरिएबल भी नहीं है, तो यानी कि मेरा जो डेरिवेशन है वो सक्सेसफुल है। सो दिस विल बी ए वर्ड इन द लैंग्वेज। So the second word which will be in the language which I have got is 0 1. So 0 1 will be in the LG. Is it clear? Then अभी मैंने S2 null अप्लाई किया था यहाँ, अगर मैं यहाँ S2 null ना अप्लाई करता, मैं वापस इसी को अप्लाई करता S2 0 S1, क्योंकि यहाँ मैं S की जगह 0 S1 भी तो लगा सकता हूँ। तो सपोज अगर मैं दूसरा पाथ लिया होता S2 0 S1 वाला, देखिए 0 तो मेरे पास है यहाँ, इस S की जगह क्या आता, 0 S1 और ये वाला 1 है मेरे पास, ठीक है, ये वाला 1। सो मेरे पास क्या स्ट्रिंग आ जाता है, ये स्ट्रिंग आ जाता है। अब इस स्ट्रिंग में भी मेरे पास क्या है, वापस वेरिएबल है। सो स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स पे नहीं पहुंचा। अब स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S2 null अप्लाई करना पड़ेगा। सो ओके, लेट मी अप्लाई S2 null। जैसे ही मैंने S2 null अप्लाई किया, मेरे पास क्या आ गया, 0 0 1 1। Is it? So this is a string of terminals only which I cannot further modify. So I have to stop here. Okay. So this will be a word in the language. So next word in the language will be 0 to the power 2, 1 to the power 2. Is it? And अगर suppose मैं यहाँ भी वापस
एस की जगह नल ना अप्लाई करता, वापस इसी को 0s1 को अप्लाई करता, तो मैं कहाँ पहुंचता, सिंपली 0 0 0 s 1 1 1। ओके, क्योंकि 0 0 तो यहाँ है, ये आ गया, 1 1 यहाँ है, ये आ गया, और जो s था, s की जगह मैंने क्या अप्लाई किया, 0s1, इज इट। तो इस तरह से मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे भी फर्दर अगर वापस मैं s इज इक्वल टू नल अप्लाई करूंगा, सो माई स्ट्रिंग विल बी 0 to the power 3 1 to the power 3। सो 0 to the power 3 1 to the power 3 विल बी हेयर, एंड इसी तरह से मैं अगर 0s1 अप्लाई करूं, आगे मैं अप्लाई करता रह सकता हूं। सपोज मैं n टाइम्स अगर इसी को अप्लाई करूं, सो आई विल बी हैविंग द फॉर्म 0 to the power n s 1 to the power n। अब अगर मैं वापस s की जगह 0s1 अप्लाई करूंगा, तो वापस 0 to the power n plus 1 s 1 to the power n plus 1 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। इससे स्ट्रिंग अप्लाई, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स पाने के लिए मुझे हमेशा s2 नल अप्लाई करना पड़ेगा। सो जितने भी वर्ड्स इसमें होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 0 to the power n 1 to the power n फॉर्म के वर्ड्स होंगे, इज इट। सो मेरे वर्ड होंगे 0 1 0 to the power 2 1 to the power 2 0 to the power 3 1 to the power 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे मेरे वर्ड्स होंगे। सो व्हाट इज माय LG? माय LG इज all words of the form 0 to the power n 1 to the power n such that n is greater than or equal to 0। Why I am taking n greater than or equal to 0? Because epsilon is also present here। अगर n की जगह मैं 0 लूंगा तो 0 to the power 0 is epsilon, 1 to the power 0 is epsilon, epsilon is epsilon। So I have the epsilon also in here। Whenever I will take n is equal to 1, so 0 to the power 1 1 to the power 1 means 0 1। So this word will be generated and so on। So this is my language corresponding to the given grammar G। अगर गिवन ग्रामर ये है तो मेरी लैंग्वेज क्या होगी, ये होगी। और मैंने कैसे निकाली लैंग्वेज, मैंने ये देखने की कोशिश की कि S से, स्टार्ट सिंबल से, स्टार्ट वेरिएबल से कौन कौन से वर्ड्स ड्राइव हो सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक डेरिवेशन प्रोसेस लिया। मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज थी मेरे पास रूल्स अप्लाई करने की, उनको सिस्टमेटिक वे में मैंने एक एक करके अप्लाई किया। तो सारे पाथ्स मैंने फॉलो किए, तो जितने भी स्ट्रिंग्स मेरे ड्राइव हो सकते थे वो सब मेरे पास यहाँ आ गए। सो जब मैंने सारे स्ट्रिंग जो ड्राइव हो सकते थे उनको इकट्ठा कर लिया, तो ये क्या बन गया मेरा, लैंग्वेज डिफाइंड बाय दैट पर्टिकुलर ग्रामर G। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन क्लास। Yes, sir. So in this manner, suppose a grammar is given to you, you can analyze the grammar to find the language defined by that particular grammar। क्या करना है, आपको ये देखना है कि S से, स्टार्ट सिंबल से कौन कौन से वर्ड ड्राइव हो सकते हैं। और कैसे चेक करेंगे कौन कौन से वर्ड ड्राइव हो सकते हैं, आपका जो भी प्रोडक्शन रूल्स का सेट है उसमें से जो भी प्रोडक्शंस एप्लीकेबल हो उन सबको एक एक करके अप्लाई करके देखिए। मींस एग्जॉस्टिव सर्च एक आपको करनी पड़ेगी कि कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं। उन सारे रूल्स में से एक एक करके उन रूल्स को अप्लाई करेंगे, उन सारे पाथ्स को फॉलो करेंगे, और उनसे जहां भी हमें स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स मिलेगा उसको इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरह से हम जो है एनालाइज कर सकते हैं किसी भी गिवन ग्रामर को। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल। दिस सेकंड एग्जांपल इज द रिवर्स ऑफ इट। पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, ग्रामर को एनालाइज किया था टू फाइंड द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर ग्रामर। यहां हमारे पास क्या है, हमें लैंग्वेज दी हुई है, L is being given, so let L be the set of palindromes over AB। तो लैंग्वेज क्या हुई, L is all the palindromes over AB। okay, so epsilon will be there, is it? So it is a palindrome of 0 length, is it clear? Similarly A will be there in the palindrome, इट इज द पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 1। आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी ये आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी ये आएगा। सिमिलरली बी इज देयर। सो ये दोनों ए और बी क्या है, आपके 1 लेंथ के पैलिंड्रोम है। इसी तरह 2 लेंथ के कौन से पैलिंड्रोम होंगे आपके, ए और बी बी, इज इट? सो ए अगर आप फॉरवर्ड पढ़ें तब भी ए, रिवर्स पढ़ें तब भी ए, फॉरवर्ड पढ़ें तब भी बी, रिवर्स पढ़ें तब भी बी, इज इट? तो ये आपके 2 लेंथ के पैलिंड्रोम्स हो गए। इसी तरह से सपोज अगर आपको 3 लेंथ के पैलिंड्रोम्स निकालने हैं तो कौन कौन से होंगे आपके, ट्रिपल ए, इज इट? एंड देन बी ए बी, सिमिलरली ए बी ए एंड ट्रिपल बी। ये 4 आपके क्या होंगे, 3 लेंथ्स के पैलिंड्रोम होंगे। आप देखिए 3 लेंथ्स के और जितने भी वर्ड्स हैं वो पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका ए बी
दैट इज नॉट ए पैलिंड्रोम, जो हमने छोड़ दिया है इसमें। ओके, अब देखिए इसको अगर आप फॉरवर्ड रीड करें या रिवर्स रीड करें, ये आपका सेम रीड होगा, सो इट इज ए पैलिंड्रोम। बी ए बी चाहे इधर से रीड करें चाहे इधर से रीड करें, इट इज सेम, सो पैलिंड्रोम। ए बी ए चाहे इधर से रीड करें चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करें, दोनों सेम होंगे। तो इस तरह से हमारे पैलिंड्रोम्स है, एंड सो ऑन। So this is our language. I hope language is clear to everyone. What language we have for which we have to design a grammar. So we are designing the grammar. We are designing. पिछली बार हम क्या कर रहे थे? एनालाइज कर रहे थे, ग्रामर हमें मालूम थी, लैंग्वेज फाइंड कर रहे थे। अब हमें लैंग्वेज मालूम है, हमें ग्रामर फाइंड आउट करनी है। Whenever we have to design the grammar, there are multiple ways, and moreover, and it is a matter of practice also. Okay, designing में अलग अलग जगह अलग अलग ट्रिक भी लगेंगी, अलग अलग methodologies भी लगेंगी, अलग अलग जो है टेक्निक्स लगेंगी, बट इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो मैं आपको एक जनरल वे बता रहा हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिकर्सिव डेफिनेशंस को फॉलो करते हैं जब भी हम ग्रामर्स डिज़ाइन करते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशंस क्या होती हैं? हम अपनी लैंग्वेज को देखते हैं, उसमें कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं, और उसके बाद वाले जो वर्ड्स होते हैं वो उन बेसिक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। सर्टेन कॉम्बिनेशन और सर्टेन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ओवर दोज बेसिक वर्ड्स, एंड वी कैन फाइंड द अदर वर्ड्स इन द लैंग्वेज। नॉर्मली इट हैपन्स, स्पेशली द लैंग्वेजेस विच आर रेगुलर एंड विच आर टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। सो उन सब में जो है एक रिकर्शन, एक रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बीच में होती है। इफ वी आर सक्सेसफुली एबल टू फाइंड दैट रिलेशनशिप, देन वी कैन इजीली डिजाइन दी ग्रामर। ओके, सो अब इस ग्रामर को मैं डिजाइन कर रहा हूं। इस ग्रामर में मैं रूल 1, मैं रिकर्सिव डेफिनेशन देता हूं पहले। तो रूल 1 जो बेस रूल है, देखिए आप किसी भी तरह से नल ए और बी को जनरेट नहीं कर सकते, ये बेसिक वो है। ओके, सो मैं कहता हूं नल ए एंड बी आर पैलिंड्रोम्स। ये मेरा पहला assumption है, तो ये मैंने सीधे इंक्लूड कर लिए। उसका दूसरा मेरा क्या है, रिकर्सिव रूल। अब मैं जो मेरे पास ऑलरेडी पैलिंड्रोम्स हैं उनकी हेल्प से नए पैलिंड्रोम्स बनाने की कोशिश करूंगा। इसे सपोज मुझे ए जनरेट करना है या बी जनरेट करना है, इस एप्सिलॉन की हेल्प से मैं जनरेट कर सकता हूं। देखिए पैलिंड्रोम क्या होता है कि आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करें या रिवर्स डायरेक्शन में रीड करें, सेम वर्ड्स आते हैं। ओके, तो अब अगर यानी कि सेम वर्ड्स आते हैं, तो यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से एंड होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग और एंड का लेटर सेम होना चाहिए। आप देखिए ये प्रॉपर्टी इन सारे के सारे स्ट्रिंग्स में, सारे के सारे वर्ड्स में आपको मिलेगी। ओके, सो यानी कि स्टार्टिंग और एंड सेम हो, और बीच में अगर ऑलरेडी एक पैलिंड्रोम हो तो आपका नया पैलिंड्रोम बन जाएगा। ओके, सो यानी कि मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि इफ x इज ए पैलिंड्रोम, then AXA and BXB will also be the palindromes. Is it clear or not? AXA and BXB both will be the palindromes। और इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी, अगर X पैलिंड्रोम है तो इस X से मैं कितने पैलिंड्रोम बना सकता हूं? हर पैलिंड्रोम से आप 2 पैलिंड्रोम बना सकते हैं। एक तो AXA यानी कि दोनों तरफ आप क्या ऐड कर दें, A ऐड कर दें, या फिर BXB यानी दोनों तरफ क्या ऐड कर दें, B ऐड कर दें। अब चूंकि आपके पास यहाँ 2 ही सिंबल्स हैं A एंड B, तो आप केवल यही 2 पैलिंड्रोम्स जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पैलिंड्रोम आप इस X से जनरेट नहीं कर सकते। इज इट? सो AXA एंड BXB। और हमने क्या प्रॉपर्टी फॉलो की कि हर पैलिंड्रोम से जो अगले पैलिंड्रोम बनेंगे उनमें आपको दोनों तरफ या तो A ऐड करना पड़ेगा या दोनों तरफ B ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जहां जो जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी से आप एंड करें, ये आपको इंश्योर करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते AXB या BXA, यू कैन नॉट डू दिस। ओके, सो अब आप देखिए, अगर मैं इसको एप्सिलॉन पे अप्लाई करता हूं, तो अगर x की जगह एप्सिलॉन आ जाए, यू विल गेट AA, यू विल गेट हियर BB। सो आपके जो नेक्स्ट पैलिंड्रोम्स हैं
लेंथ 2 के वो जनरेट हो गए, 0 वाली लेंथ से आपके 2 वाले लेंथ वाले जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसको a पे अप्लाई करें, यानी कि x की वैल्यू क्या हो आपकी a हो, सो x की जगह a रख दीजिए, देन यू विल गेट a ट्रिपल a, दिस वन। देन आप रख दीजिए b a b, x की जगह a रख दीजिए b a b, नेक्स्ट वन। सो दीज टू पैलिंड्रोम्स फ्रॉम दिस a यू कैन जनरेट, इज इट। उसके बाद फिर अगर आप इस x की जगह आप नेक्स्ट वाला ये b रख दीजिए, ठीक है, तो इट विल बी a b a, दिस वन। एंड देन अगर इसकी जगह b रख दीजिए तो ट्रिपल b b b b, दिस वन, यू कैन जनरेट, इज इट। उसके बाद ऐसे ही आगे के आप जनरेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको अब जो है ये आपके 3 लेंथ तक के हो गए, अब आपको 4 लेंथ के सारे पैलिंड्रोम जनरेट करने हैं, तो किससे होंगे, 2 लेंथ वाले पैलिंड्रोम से जनरेट होंगे। ओके, इन दोनों के इसके दोनों तरफ a लगा दीजिए या इसके दोनों तरफ b लगा दीजिए, यानी कि नेक्स्ट जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, a इज इट, दोनों तरफ a लगा दिए। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, b a b, इज इट। तो ये 2 वर्ड जनरेट होंगे, इज इट। अब उसके b से ऐसे जनरेट हो जाएंगे, b बीच में है, इसके दोनों तरफ आप a लगा दीजिए या फिर दोनों तरफ आप b लगा दीजिए। सो इन 2 पैलिंड्रोम से आप ये 4 पैलिंड्रोम्स जनरेट कर सकते हैं, विच विल बी ऑफ द लेंथ 4, इज इट क्लियर। तो इस तरह से आपके पैलिंड्रोम्स जनरेट होते जाएंगे। सो दिस डेफिनेशन इज करेक्ट। सो वी विल फॉलो दिस डेफिनेशन एंड वी विल कन्वर्ट दीज रूल्स इनटू द प्रोडक्शन रूल्स ऑफ आवर ग्रामर। ओके, सो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया, हमारा पहला रूल आया, सेट ऑफ प्रोडक्शन p बना रहा हूँ, this p is a set of productions, set of productions. This p is consisting of first rule s2 epsilon or a और b। मैंने बताया था s प्रोडक्शंस हैं तो मैं वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके इनको लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं क्या लिखता है, s2 epsilon एक प्रोडक्शन, अगला प्रोडक्शन लिखता है S2A, उससे अगला प्रोडक्शन लिखता है S2B। सो इन दैट मैनर ऑल्सो वी कैन राइट S2 null, S2A, S2B। Okay, so this is a compact way of writing the production rule. So I will always be using this particular format, is it? उसके बाद क्या है अगला, ये तो रूल 1 को आपने इंप्लीमेंट कर लिया, अब रूल 2 को इंप्लीमेंट कीजिए। अगर x पैलिंड्रोम है, ओके, हमने s को क्या माना, s को पैलिंड्रोम माना, उसी से तो पैलिंड्रोम जनरेट कर रहे हैं, तो s हमारा ऑलरेडी अगर पैलिंड्रोम है तो ASA एंड BSB विल आल्सो बी द पैलिंड्रोम। सो s विल बी इक्वल टू ASA ओब्लिक BSB। सो दोनों रूल्स को मैंने इंप्लीमेंट किया। सो ये क्या हो गया, मेरा सेट ऑफ प्रोडक्शंस हो गया। ओके, अब अगर मुझे ग्रामर लिखनी है तो ग्रामर G इज व्हाट, इट इज कलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स Vn। अब इसमें कितने वेरिएबल्स यूज किए, मैंने केवल एक ही वेरिएबल यूज किया, दैट इज द कैपिटल S। ओके, सो हियर आल्सो देयर विल बी ओनली 1 वेरिएबल S। मेरा इनपुट अल्फाबेट या टर्मिनल्स का अल्फाबेट क्या है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिंबल्स A एंड B। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग A एंड B हियर। सो दिस इज माय सिग्मा। देन सेट ऑफ प्रोडक्शन P, वो किससे, दीज प्रोडक्शंस। So there are 1, 2, 3, 4, 5 productions in this set P. Okay, अगर मैं यहाँ लिख रहा होता तो यहाँ में कुछ ऐसे लिखता है S2 A S A S2 A S B। तो चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए। ओके, एंड देन स्टार्ट सिंबल S। So this is my G where P. So basically if you write P then everything is already implicit. Okay, सो बट नॉर्मली फॉर्मली जब आप लिखें तो आप हमेशा G को मेंशन करिए कि उसमें कौन से वेरिएबल्स आपने यूज़ किए, क्या आपका अल्फाबेट है, सेट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने ये डिफाइन कर दिया एंड स्टार्ट सिंबल आपका क्या है। सो नाउ फ्रॉम द लैंग्वेज वी वर नोइंग द लैंग्वेज, फ्रॉम द लैंग्वेज वी हैव ऑब्टेन्ड द ग्रामर G। बेसिकली इफ यू आर एबल टू राइट द सेट ऑफ प्रोडक्शन देन यू हैव रिटन द ग्रामर। सो आगे से हम इस पूरे फॉर्मेट को नहीं लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग ओनली द सेट ऑफ प्रोडक्शंस। बट एग्जाम में जब भी आपको लिखना हो, कभी रिटन एग्जाम हो, तो आप हमेशा G को पूरा लिखिए। आई होप इट इज क्लियर क्लास हाउ वी हैव डिजाइन्ड द ग्रामर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन लैंग्वेज। यस सर। ओके, so we have taken 2 things, number 1 analyzing the grammar, number 2 designing the grammars। अब इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसकी डिजाइनिंग पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो डिजाइनिंग की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, बट उससे पहले हम
पहले ये समझ लें कि ग्रामर की हमारी कैपेसिटी क्या है, ग्रामर के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने देखिए एफए डिस्कस किया, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस किया, एफए की वैरायटीज डिस्कस की, डीएफए, एनएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए। और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे थे रेगुलर लैंग्वेजेस को, रेगुलर लैंग्वेजेस। अब ग्रामर जब हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रामर को हम किस चीज के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ग्रामर की कैपेसिटी क्या है। हम एफए से रेगुलर लैंग्वेजेस के अलावा किसी भी और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज का फॉर्म a टू द पावर n, b टू द पावर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, यानी कि जहां पे मैचिंग करानी थी हमें और इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज थी, सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड एन एफए corresponding to it, so it is a non-regular language, non-regular language, and FAs were not able to represent or represent this the non-regular kind of languages, is it? So grammar क्या non-regular languages को represent कर सकती है, this we have to see. So before going into the further discussion, we will first discuss the kind of grammars which we may have. Okay, for this we will be discussing the Chomsky hierarchy. So this is the Chomsky hierarchy for the grammars. This is the Chomsky hierarchy for the grammars. This Chomsky hierarchy says that we can divide our grammars into the 4 categories: type 0, type 1, type 2 and type 3. जो type 3 grammars हैं, these are called regular grammars and they represent the regular languages. Regular languages. And these are accepted by the finite automata. Okay, so ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी तक हमने जितनी भी लैंग्वेजेस डिस्कस की वो हमारा ये वाला पार्ट था। टाइप 3 लैंग्वेजेस थी जिन्हें हम रेगुलर लैंग्वेजेस कह सकते हैं, और ये रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द रेगुलर ग्रामर. सो ग्रामर कैन रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेजेस. ओके, नाउ ग्रामर कैन आल्सो रिप्रेजेंट द टाइप 2 लैंग्वेजेस विच आर अबव देन द टाइप 3. अगर आप यहाँ रिलेशनशिप देखें तो देखिए मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं कुछ. सो दिस सर्कल शोज ऑल पॉसिबल रेगुलर लैंग्वेजेस, और जो बड़ा वाला सर्कल है जिसमें टाइप 2 लिखा है, इट शोज ऑल पॉसिबल टाइप 2 लैंग्वेजेस जिनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी कहेंगे. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. and it will be accepted by some other tool that is known as the push down automata. So that is also an automata, a special kind of automata that is known as the push down automata. Is it? इससे हमारा ये रिप्रेजेंट होगा. और ये जो बड़ा सर्किल है, इस छोटे सर्किल को इसने एम्बेड कर रखा है. इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंटेन्स दिस स्मॉलर सर्किल. This shows the relationship between the two kind of languages. Means every type 3 language is also a type 2 language. Is it? Every type 3 language is also a type 2 language. क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर contained है. But every type 2 language is not type 3. क्योंकि देखिए type 2 language जो यहाँ exist करेगी, that cannot be treated as type 3 language. But एक टाइप 2 लैंग्वेज जो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द टाइप 3 लैंग्वेज. इज इट? सो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? कंटेनमेंट रिलेशनशिप है. यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस फुल्ली कंटेन्स ऑल दी रेगुलर लैंग्वेजेस ऑल्सो. यानी कि जितनी भी हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी हैं, मगर हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज हो ये जरूरी नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर क्लास. Yes, sir. Okay. Now, in the similar manner, if you see that a bigger circle is there for the type 1, okay, and this type 1 is called context sensitive grammar, and the corresponding language is called context sensitive language, and it is accepted by linear bounded automata. So this linear bounded automata abhi hum aage discuss karenge. This is nothing but it is the Turing machine with linear tape length. अभी चूंकि आपने ट्यूरिंग मशीन नहीं पढ़ी है, ट्यूरिंग मशीन का स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम, तो ट्यूरिंग मशीन के स्ट्रक्चर में एक टेप होता है.
सो वो टेप इन्फाइनाइट टेप होता है जो ट्यूरिंग मशीन होती है। लेकिन अगर उस टेप को हम लेंथ को लिमिट कर दें, सो वो अगर उस टेप की लेंथ लीनियर फंक्शन हो हमारे इनपुट लेंथ का, तो हम उसको बाउंडेड लेंथ का टेप कहते हैं। इज इट? चूंकि इन प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिस जो है आप इन्फाइनाइट लेंथ के टेप जो है नहीं ले सकते अगर आप फिजिकली इंप्लीमेंट करने जाए मशीन को। ओके, सो दैट्स वाई फाइनाइट लेंथ जरूरी है। सो लीनियर लेंथ का अगर टेप है तो ये क्या कहलाता है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। सो टेप की लेंथ आपने लीनियरली बाउंड की विद द लेंथ ऑफ इनपुट, सो ये आपका क्या हुआ? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा कहेंगे। बट बेसिकली इट इज ए ट्यूरिंग मशीन, इट इज ए रेस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग मशीन with bounded length. Is it? So this is called linear bounded automata, and this is the tool by which we can accept context sensitive grammars, and these are also known as type 1 grammars. Again containment relationship यहाँ भी है, यानी कि जो भी language type 3 है वो type 2 भी है और type 1 भी है। Is it? जो भी language type 2 है वो type 1 भी है, मगर type 3 हो ये जरूरी नहीं है। अगर वो यहाँ बिलोंग कर रही है तो type 2 भी सॉरी टाइप 3 भी होगी, लेकिन अगर यहाँ बिलोंग करी तो टाइप 2 होगी और टाइप 1 भी होगी, लेकिन टाइप 3 नहीं होगी। इज इट? और जो लैंग्वेजेस यहाँ बिलोंग कर रही हैं, यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो केवल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। वो ना तो कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं ना रेगुलर हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ होती, इस जगह पे होती तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी हो सकती थी, इस जगह होती तो रेगुलर लैंग्वेज भी हो सकती थी। सिमिलरली अब ये टाइप 4, इट इज ए फर्दर बिगर सर्किल. This type 0 is the unrestricted grammar, and language represented by this is called phrase structure language. Means English like normal जो हमारी languages होती हैं, phrase structure languages, or other name also given to it is the recursively enumerable. Recursively enumerable. So it is unrestricted grammar, and it represents the phrase structure or recursively enumerable languages, and this is recognized by the Turing machine, the full-fledged Turing machine with infinite length of tape. Okay, so this is the acceptor for this particular language. So this is type 0. Again, if language exists here, so it is only a type 0 language. It is neither context sensitive nor context free nor not regular. Okay, अगर यहाँ एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज, सो टाइप 1 भी है और टाइप 0 भी है। अगर आप देखें, आप कोई भी लैंग्वेज अगर आपको दी हुई है तो टाइप 0 तो सारी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेजेस क्या है? टाइप 0 है। सो डिपेंडिंग ऑन in which area your language lies, you can decide the type of the language. Now Chomsky has classified these grammars into, अब चूंकि इस एरिया में ऐसे तो मुझे दिखाई नहीं देगा कि मेरी लैंग्वेजेस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, so there should be some criteria. So Chomsky has classified the grammars into 4 types in terms of the structure of the production. यानी कि structure of the production is the key which will tell me whether my language is type 3, my language is type 2, my language is type 1 और my language is type 0. But again आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपकी language type 3 है तो you can also call it as type 2 language, you can also call it as type 1 language, you can also call it as type 0 language, क्योंकि containment relationship यहाँ पर है. But whenever I want the type of the language, so जो भी finest category है that I should represent. तो यानी कि अगर कोई लैंग्वेज मेरी इस जगह एग्जिस्ट कर रही है तो जो भी फाइनेस्ट कैटेगरी मींस इट इज अ टाइप 3 लैंग्वेज, सो आई विल नॉट से इट इज अ टाइप 2, आई विल नॉट से इट इज अ टाइप 1, आई विल नॉट से इट इज टाइप 0. टेक्निकली इट इज टाइप 2 आल्सो, टाइप 1 आल्सो, टाइप 0 आल्सो, बट आई विल से इट इज अ टाइप 3 लैंग्वेज. सो द हाईएस्ट टाइप आई विल बी रिटर्निंग एज द आंसर. कोई लैंग्वेज अगर सपोज यहाँ आ रही है, यानी कि मेरे हिसाब से टाइप 2 आ रही है, टाइप 3 नहीं है, तो मैं उसको टाइप 2 कहूंगा, जबकि टाइप 2 के साथ साथ वो टाइप 1 भी है, टाइप 0 भी है, बट आई विल ऑलवेज से इट इज ए टाइप 2 लैंग्वेज. आई होप दिस इज क्लियर. सो इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शंस. सो आई विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शंस टू डिसाइड which type of language or which type of my grammar is. Class, is there any doubt or clear? Clear sir, no doubt. Okay. So now you carefully look at this table. Okay,
इस टेबल में देखिए पहले टाइप दिया हुआ है, दिस इज अ टाइप ऑफ द लैंग्वेज। सो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये 4 टाइप की हम लैंग्वेज डिस्कस की हैं। उसके बाद इनके लैंग्वेजेस के नाम है। अगर टाइप 0 लैंग्वेज है तो मैं इसको क्या कहता हूँ, इट इज फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। अगर टाइप 1 है तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, टाइप 2 है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और टाइप 3 है तो ये रेगुलर लैंग्वेज है। और इनके ग्रामर्स भी यही है, अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, अगर फ्रेज स्ट्रक्चर है या रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, टाइप 0। ओके, ये जिस टूल से एक्सेप्ट होगा वो टूल यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्टर। जो टाइप 0 है वो ट्यूरिंग मशीन से होगी। टाइप 1 जो है वो ट्यूरिंग मशीन विद बाउंडेड टेप लेंथ होगी, जिसको हम लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट वी विल कॉल इट एज LBA। ओके, जो टाइप 2 है यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये पुश डाउन ऑटोमेटा से होगी, जिसको इन शॉर्ट हम कहेंगे PDA। और जो टाइप 3 है रेगुलर लैंग्वेजेस है, ये किससे होंगी, फाइनाइट ऑटोमेटा से होंगी, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं FA। इज इट? अब इनमें प्रोडक्शंस का अगर ग्रामर के टर्म्स में देखें तो इनमें प्रोडक्शन का फॉर्मेट क्या होगा। टाइप 0 का जो प्रोडक्शन का फॉर्मेट है, प्रोडक्शन किस फॉर्म के होंगे, X to Y, समथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। इज इट? अब X क्या है, X में भी एनी स्ट्रिंग विद नॉन टर्मिनल्स। नॉर्मली मैंने आपको कहा हुआ है जहां भी आपको कैपिटल लेटर्स दिखाई दें वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ मैंने ये यूज किए हैं, कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं, बट दीज कैपिटल लेटर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग दी वेरिएबल्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी स्ट्रिंग्स। ओके, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है अलग से। ओके, X to Y का फॉर्मेट है। तो X क्या है, एनी स्ट्रिंग विद नॉन टर्मिनल्स, यानी कि ये X कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, इसमें कम से कम कोई एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए। इज इट क्लियर है? तो हम जो रूल्स किसके लिए लिखते हैं, वेरिएबल्स के लिए लिखते हैं। तो जब तक लेफ्ट पे वेरिएबल्स नहीं होंगे तब तक वो हमारे वैलिड रूल्स नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो X इज एनी स्ट्रिंग ओवर VN यूनियन सिग्मा, ओवर VN यूनियन सिग्मा, यानी कि इसमें टर्मिनल्स भी हो सकते हैं इस X के अंदर, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए। सो it belongs to X and Y, both belongs to this one, VN union sigma star। is it? So X is any string with non terminals, Y क्या है, it can be any string, यानी कि इधर कम से कम एक टर्मिनल जरूरी है, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इधर हो सकता है कोई टर्मिनल ना भी, कोई नॉन टर्मिनल ना भी हो। ठीक है, हो सकता है कुछ टर्मिनल हो, कुछ नॉन टर्मिनल हो, मिक्स हो, केवल टर्मिनल्स हो, केवल नॉन टर्मिनल्स हो, एप्सिलॉन हो, कुछ भी हो सकता है ऑन राइट हैंड साइड। सो अगर इस तरह के मेरे प्रोडक्शंस हैं, यानी कि इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो ये मेरे प्रोडक्शंस क्या होंगे, ये मेरे टाइप 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस होंगे। तो एक तरह से अनरेस्ट्रिक्टेड है ये मेरी ग्रामर। इज इट? नाउ टाइप 1, टाइप 1 क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने जो ऊपर लिखा है वही लिखा है, X इज एनी स्ट्रिंग विद नॉन टर्मिनल्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जैसी टाइप 0 में थी वैसी ही यहाँ भी है। Y क्या है, यस राइट हैंड साइड भी वैसी एनी स्ट्रिंग, बट एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, एज लॉन्ग एज लॉन्गर देन X, यानी कि Y कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, उसमें टर्मिनल्स हो सकते हैं केवल, उसमें केवल वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसमें दोनों का मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसकी लेंथ इस X से छोटी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या फिर इस X से बड़ी लेंथ होगी, यानी कि लेंथ रिडक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रिंग इज नॉट पॉसिबल। मैं इसमें लिख देता हूं, लेंथ रिडक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रिंग is not possible, is it, in case of type 1। जबकि टाइप 0 में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइप 0 में आप वर्किंग स्ट्रिंग की लेंथ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ वेरिएबल्स, कुछ चीजें इरेज भी कर सकते हैं अपने वर्किंग स्ट्रिंग से। यहाँ आप क्या है, इरेज कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमेशा उसकी लेंथ या तो बराबर रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? So this is the difference between the type 0 and type 1 productions. Now come on the type 2. Type 2 में क्या है, X is one non-terminal. Is it? अब मैंने क्या किया, X को restrict कर दिया कि X में सब कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या था, X was any string, यहाँ पे क्या था, X was any string,
यहाँ x is not any string, x is a one non-terminal, so means x will be a variable. So यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सिंगल वेरिएबल हो तो मेरा ये टाइप 2 के प्रोडक्शन बनेंगे, और राइट हैंड साइड पर क्या हो, एनी स्ट्रिंग. ओके, सो मेरे प्रोडक्शन की फॉर्मेट क्या हुई, x2 अल्फा इन जनरल. ओके, सो x इज ए वेरिएबल एंड अल्फा इज ए स्ट्रिंग ऑफ variables and terminals. So alpha will be a string of variables and terminals. So अगर इस तरह के मेरे productions हैं तो मेरी language क्या होगी, context free. Okay, अभी हम ये भी discuss करेंगे why we are calling it as context free. Okay, then come on the third one, that is the regular type 3. Type 3 में क्या होगा, x will be a non-terminal, यानी कि x will be a variable, left hand side will be a variable, और इसके साथ साथ राइट हैंड साइड पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि राइट हैंड साइड पे सब कुछ नहीं आ सकता, एनी स्ट्रिंग नहीं आ सकता. राइट हैंड साइड पे या तो tn आएगा या t आएगा, जहां पे t क्या है, t इज ए टर्मिनल, और n क्या है, इट इज ए नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल. यानी कि राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे या तो एक सिंगल टर्मिनल होगा या फिर दो चीजें होंगी, पहला जिसमें से टर्मिनल है और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनल है. इज इट, यानी कि मैक्सिमम 2 लेंथ का स्ट्रिंग आ सकता है राइट हैंड साइड पे, जिसमें से एक टर्मिनल होगा और एक नॉन टर्मिनल, यानी कि एक टर्मिनल होगा और एक वेरिएबल होगा. इज इट, तो अगर ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है तो हमारा जो लैंग्वेज होगी, जो ग्रामर होगी वो रेगुलर होगी, और किसको रिप्रेजेंट करेगी, रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड the format, the structure of productions corresponding to each type of languages और grammar. टाइप 0 का ये फॉर्मेट होगा प्रोडक्शन का, टाइप 1 का ये फॉर्मेट होगा प्रोडक्शन का, टाइप 2 का ये होगा और टाइप 3 का ये होगा. इज इट क्लियर क्लास? यस सर. ओके, अब नॉर्मली एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये आते हैं कि आपको कुछ प्रोडक्शंस का सेट दिया जाएगा, ठीक है, या तो कोई प्रोडक्शन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये प्रोडक्शन किस टाइप का है, यानी कि टाइप 0 का है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, तो आपको आंसर करना है. तो आपको प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर एनालाइज करना, देखना, इनमें से मैच कराना, किससे मैच करता है, जिससे मैच करता है उसका जो है आप रिटर्न करेंगे आंसर में. इज इट, या फिर आपको मल्टीपल प्रोडक्शंस दे दिए जाएंगे, यानी ग्रामर दे दिए, ग्रामर में से एक प्रोडक्शन सेट दे दिया, अब आपसे पूछा जाएगा ग्रामर किस टाइप की है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर में जितने भी प्रोडक्शंस है सबकी टाइप फाइंड आउट करनी पड़ेगी. इज इट, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि पूरी ग्रामर किस टाइप की है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो उनमें से टोटल ग्रामर को हम फिर किस टाइप के प्रोडक्शन के बेसिस पे जो है रिप्रेजेंट करें, दैट वी हैव टू लुक एट. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, तो इसको क्लोजली देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो आते हैं टाइप 0 ग्रामर्स पे. टाइप 0 ग्रामर क्या है, इट इज एनी फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. जैसा ये भी हमने देखा भी, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, दिस वन. अब देखिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया. वहां मेरा क्या था, x to y, x क्या था, एनी स्ट्रिंग. ओके, सो अब उस एनी स्ट्रिंग को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, साई फाई अल्फा साई. इसको मैं कहूंगा फाई, इसको मैं कहूंगा अल्फा, इसको मैं कहूंगा साई. ओके, 2 फाई बीटा साई. सो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो रहा है मेरे पास प्रोडक्शन होगा अल्फा टू बीटा. इज इट, तो मेरे प्रोडक्शन के फॉर्मेट क्या है, साई अल्फा और फाई अल्फा साई टू फाई बीटा साई. इसका मतलब बेसिकली मैं, आप इसमें ध्यान से देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, अल्फा को बीटा में चेंज कर रहा हूँ, अल्फा को बीटा में चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ इधर उधर वैसा का वैसा ही है. सो इसलिए मैं फाई को क्या कहूंगा, फाई इज कॉल्ड लेफ्ट कंटेक्स्ट एंड साई इज कॉल्ड राइट कंटेक्स्ट. क्यों, क्योंकि जिस चीज को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसके लेफ्ट में जो कुछ भी मौजूद है वो क्या है, मेरा लेफ्ट कंटेक्स्ट. उस चीज के राइट में जो कुछ भी है मेरा, वो मेरा क्या है, राइट कंटेक्स्ट. इज इट, सो ये मेरे लेफ्ट और राइट कंटेक्स्ट हो गया, और अल्फा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. सो अल्फा शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 वेरिएबल, यानी कि वही, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स को रिप्लेस करके दूसरे चीज से बदल दे रहा हूँ. कम से कम कोई वेरिएबल आना चाहिए, बिना वेरिएबल के मैं प्रोडक्शन रूल अप्लाई नहीं कर सकता. तो दिस अल्फा कंटेन्स एटलीस्ट 1 वेरिएबल. सो ये वही फॉर्मेट है कि x एनी स्ट्रिंग, बट उसमें कम से कम एक वेरिएबल आएगा, ये मैंने इंश्योर कर लिया, क्योंकि फाई पे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसमें कुछ भी हो सकता है. साई पे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, इसमें कुछ भी हो सकता है. बट अल्फा पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि इसमें कम से कम एक वेरिएबल होना जरूरी है. तो एक तरह से x को लिख लिया मैंने, और इधर क्या है मेरा y.
ऐसे ही वाई फाई और साई तो वैसे की वैसे आएंगे, बीटा कैन बी एनीथिंग, बीटा कैन बी एनीथिंग, यानी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है राइट हैंड साइड पे, सो एनी स्ट्रिंग आई कैन राइट। सो बीटा पे इवन ये रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि इसके अंदर कोई वेरिएबल होना चाहिए, इज इट? सो ये मेरा फॉर्मेट बना, ये मेरा स्ट्रक्चर बना टाइप 0 ग्रामर का। अब इसमें एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं कि ये मेरा कैसे टाइप 0 ग्रामर्स में फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ए बी कैपिटल ए, बी सी डी टू ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड बी सी डी इज इट? अगर मैं इस प्रोडक्शन को देखूं तो ये प्रोडक्शन मेरा किस टाइप का प्रोडक्शन है? इट इज ए टाइप 0 प्रोडक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए ये ए मैच किया, ये ए मैच किया, इसके आगे मैच नहीं कर रहा, इज इट? यानी कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरा क्या है, लेफ्ट कंटेक्स्ट। ओके, उसके बाद राइट से चेक करते हैं, डी सी बी यहां तक मैच कर रहा है, जैसे यहाँ ए आया वैसे ही यहाँ अनमैच हो गया। सो इस पोर्शन को मैं क्या कह दे रहा हूँ, ये मेरा हो गया राइट कंटेक्स्ट। तो यानी कि मेरी फाई की वैल्यू क्या हुई, ए, और साई की वैल्यू क्या हुई, बी सी डी। ओके, उसका ये क्या हुआ मेरा, उसके बीच में जो कुछ भी है दैट इज अल्फा। सो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज स्मॉल बी कैपिटल ए। सो दिस यू आर गोइंग टू रिप्लेस विद व्हाट, विद दिस वन, ए बी। तो बीटा क्या हुआ, बीटा इज ए कैपिटल बी, इज इट? सो चूंकि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इज इट, और फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टाइप 0 ग्राम। इज इट क्लियर और नॉट क्लास? इट इज टाइप 0 क्लास। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now I take second example, AC to A, suppose this one। अब इसमें मुझे बताइए लेफ्ट कंटेक्स्ट क्या है। आप देखिए ए तो ये ऐसे ही मैच कर रहा है, इज इट, और इधर की तरफ भी ए मैच कर रहा है। अगर इसको लेफ्ट कंटेक्स्ट ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट कंटेक्स्ट ले लूं, ठीक है, तो मेरा फाई इज ए। अब राइट से मैच करना शुरू करता हूं, राइट से देखिए सी, तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि साई मेरा क्या है, साई इज माई एप्सिलॉन, नल, यानी कि राइट कंटेक्स्ट जो है नल है मेरा, इज इट? और ये मेरा क्या हुआ, अल्फा, अल्फा इज माई सी, दिस वन, इज इट? एंड बीटा इज व्हाट, बीटा इज ए। ओके, सो दिस ऑल्सो यू कैन राइट, सो इट इज ऑल्सो टाइप 0। इसको लिखने के दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके भी हो सकते हैं। आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, आप करें फाई लेफ्ट कंटेक्स्ट, सॉरी हाँ लेफ्ट कंटेक्स्ट इज ए, फाई, ओके यस वी हैव रिटन करेक्टली। So this is type 0 grammar. Okay, so beta is your what, beta is your a, is it clear? Beta is a, c को आपने किससे रिप्लेस किया है, e से, a से रिप्लेस किया, is it? Similarly अगर आप एक और एग्जांपल लें, सपोज c to null, ओके, सो इसमें आप देखिए इधर तो नल है तो हमेशा सब कुछ नल ही आएगा। सो इसका लेफ्ट कंटेक्स्ट फाई विल आल्सो बी नल, ठीक है, इसका राइट कंटेक्स्ट साई विल आल्सो बी नल। ये क्या है, अल्फा, सो अल्फा इज सी, दिस वन, अल्फा इज सी, एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज नल, एप्सिलॉन। ओके, इधर की तरफ नल आ रहा है, सो इट इज एप्सिलॉन। कैरेट और एप्सिलॉन आई एम यूजिंग इंटरचेंजेबली, बोथ रिप्रेजेंट्स द नल। Is it okay? So this also we are able to write in this particular format. So it is a type 0 grammar. I take one last example, BA to AB. Okay. Again आप देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा. So phi is null, psi is null, and alpha is BA and beta is AB.
सो सिंपली अल्फा से बीटा रिप्लेस हो रहा है इन एनी कंटेक्स्ट। ओके, सो आप अगर ध्यान से देखें तो कोई भी आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, आप हमेशा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। So that's why any production, any grammar which will be given to you will always be a type 0 grammar. Type 0 तो होगा ही होगा। ओके, अभी आप देखिएगा इसी में से जब हम टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस करेंगे तो इसी में से कुछ एग्जांपल्स हम शो करेंगे कि दोज आर टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3, इज इट? सो जहां भी वो टाइप 1, मान लीजिए आप देखिए सपोज C2 नल, ये मेरा सपोज टाइप 0 तो है। अगर कहीं पे मैं चेक करता हूँ एंड आई एग्जामिन दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ टाइप 2, सो मैं कौन सा नंबर रिटर्न करूंगा? आई विल रिटर्न टाइप 2। सो जो भी हायर नंबर है दैट नंबर आई विल रिटर्न। सो फॉर ईच प्रोडक्शन जो भी मेरा फाइनेस्ट कैटेगरी है, यानी कि जो भी हाईएस्ट नंबर है दैट आई विल बी रिटर्न। सो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अप टिल टाइप 0 ग्रामर्स। We will continue our discussion on next lecture. So 3 more grammars we have to discuss, type 1, type 2 and type 3, and then we will see how we can find the टाइप ऑफ ग्रामर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम टाइप ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन का टाइप क्या है। एक सिंगल प्रोडक्शन वी आर एनालाइजिंग, देन वी विल बी एनालाइजिंग द होल ग्रामर, इज सेट ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, सो दैट इज अवर अल्टीमेट क्लास। If there is any doubt you can ask, otherwise we can close at this point of time and we will continue our discussion on next lecture. Is there any doubt? Class? No, sir. Okay, so I am closing at this point.